دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو انسانی جو معاشرہ ہے، جو انسانی سماج اور جو انسانی طبقہ ہے، اس میں مالدار بھی لوگ ہیں اور غریب طرح کے بھی لوگ ہیں۔ اور انسانی سماج اور انسانی معاشرے میں غریب آدمیوں کا ہونا اور مالدار لوگوں کا ہونا یہ منشأ خداوندی ہے اور یہ نظام قدرت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب اس لیے جو سماج اور معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں، اب ان مالدار لوگوں پر یہ ذمہ داری پڑتی ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سماج کے غریب لوگوں کے لیے اپنے مالوں میں ان کے حقوق نکالا کرے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے سماج کے غریب لوگوں کی جان کی، مال کی، عزتوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ جان کی، ایمان کی اور عزتوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے، زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے سماج کے غریب طبقے کے لوگوں سے ان کی مال، ان کی جان کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، ان کی ایمان کی بھی، ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر صاحب حیثیت لوگ اور مالدار لوگ اگر صحیح طریقے سے اپنی زکاتوں کو نکالیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں تو پھر کوئی بھی انسان لباس سے اور کھانے اور پینے سے محروم نہ رہے۔ یعنی گویا کہ اگر سادے الفاظ میں کہوں کہ اگر ہمارے مسلمان جو صاحب حیثیت ہیں، اگر انہوں نے صحیح طریقے سے زکات نکالی تو پورے ملک میں بلکہ پورے عالم میں بھی کوئی آپ کو بھیک مانگا نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان دو چیزوں کے لیے پریشان ہے، ایک تو روزی روٹی کے لیے اور ایک کپڑا پہننے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صحیح طریقے سے اگر آپ زکات نکالو گے صاحب حیثیت لوگ، تو پھر کسی انسان کو نہ وہ کپڑے کے لیے مجبور رہے گا، نہ کھانے پینے کے لیے مجبور رہے گا۔ اتنی اہم چیز ہے زکات۔ اور یاد رکھیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مال جہاں انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مال جہاں انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہی مال ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے اخلاق سدھارے بھی جا سکتے ہیں اور بگاڑے بھی جا سکتے ہیں۔ یعنی انسانوں کے اخلاق کے بگڑنے اور سدھرنے میں یہ مال کا بڑا دخل ہے، بڑا رول ہے اس کا۔ کیسے کہ دیکھو، انسان اگر غریب ہوتا ہے تو غربت اور تنگی کی وجہ سے انسان بسا اوقات غیر انسانی حرکتیں کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے تو انسان وہ حرکتیں کرے گا جو انسان حرکتیں نہیں کرتا ہو، اور بسا اوقات انسان بھی چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی ڈالے گا، سود کا لین دین بھی کرے گا اور جوا بازی بھی کرے گا۔ اور پھر بسا اوقات انسان مال کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا فیصلہ بھی کر لیتا ہے، اور یہ تو بڑی کم درجے کی بات ہے۔ اور نعوذ باللہ مال کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے دین، اپنے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا۔ کیا فرمایا؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی اور تنگی بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے غریبی۔ تو ان تمام برائیوں کو روکنے کا جو ایک سب سے بہترین اور سب سے اثردار جو راستہ ہے وہ زکات اور صدقات کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مذہب اسلام میں زکات کی جتنی اہمیت ہے، جتنی ویلیو ہے اور جتنی امپورٹنٹ چیز ہے زکات مذہب اسلام میں، آج ہم لوگ، ہمارے معاشرے کا جو صاحب نصاب طبقہ ہے، اس نے جتنی اہم چیز ہے زکات، اتنا ہی زکات نکالنے کو بھلا دیا۔ اور بقول شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے اس وجہ سے زکات نہیں نکالتے کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے فرائض اور اسلام کے واجبات اور اسلام کے اراکین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں مال مل رہا ہے،
لہٰذا ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے ہم اس کو اپنے کاموں میں لگاتے رہیں، خرچ کرتے رہیں بس. جبکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم، کہ تمہارے اسلام کے مکمل ہونے کی نشانی اور اسلام کے مکمل ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ تم اپنے مالوں کی کیا کرو بھائی؟ زکات ادا کرو. گویا کہ اگر میں کھلے الفاظ میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ اگر صاحب حیثیت لوگ اگر زکات ادا نہیں کرتے تو اپنے آپ کو کامل اور مکمل مسلمان کہلانا چھوڑ دے. یعنی اگر ہم لوگ زکات ادا نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام میں کامل اور مکمل ابھی نہیں ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق. اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو اللہ کے دین کے کام میں تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ہماری زکات خود بخود ادا ہو گئی، لہٰذا ہمیں زکات الگ سے ادا کرنے کی نکالنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ بولے بھالے یہ لوگ سمجھتے ہیں لوگ. اور پھر اللہ معاف کرے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی زکات کب فرض ہوتی ہے اور کس پر فرض ہوتی ہے، اور لہٰذا وہ یہ سوچ کر پوری زندگی زکات جیسے عظیم الشان عبادت سے محروم رہتے ہیں. تو بہرحال معاملہ جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے زکات کے ادا نہ کرنے. چنانچہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اور وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اور ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکات ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتے فبشرهم بعذاب أليم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. حالانکہ خوشخبری عذاب کی نہیں رہتی، خوشخبری اچھی چیزوں کی رہتی ہے، لیکن اللہ نے بطور طنز کے ارشاد فرمایا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کیسا عذاب ہوگا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. کیسے عذاب اللہ دیں گے ان سونے اور چاندی کو جو دنیا میں تم بچا بچا کر رکھتے تھے خزانے کے طور پر، اس کی زکات ادا نہیں کرتے تھے، تو کل قیامت کی دن تم اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کو آگ میں پگھلائیں گے، تپائیں گے اس کو، اور پھر تمہارے پیشانیوں کو سدھاگیں گے، تمہارے پہلوؤں کو سدھاگیں گے، اور تمہارے پشت اور تمہاری پیٹھوں کو سدھاگیں گے. اور اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم، یہی ہے وہ تمہارا خزانہ، لانفسکم، جس کو تم خزانے کے طور پر جمع کر کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا عذاب اس خزانے کا جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے. یہ سزا ہوگی کل قیامت میں اگر ہم نے اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کی. لیکن اب وہی معاملہ جو میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ زکات کب فرض ہوتی تھی، کس پر فرض ہوتی ہے اور کیسا دینا. تو خوب معلوم ہونا چاہیے زکات کی جو بنیاد ہے وہ جو 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں بھائی؟ 4 چیزیں زکات کی بنیاد. یعنی زکات کی اہمیت اور زکات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو. سب سے پہلی چیز ہے اشیاء زکات. کیا ہے بھائی؟ اشیاء زکات. دوسری چیز ہے نصاب زکات. تیسری چیز ہے شرائط زکات. اور چوتھی چیز ہے مصارف زکات. کیا مطلب؟ کوئی سمجھ میں نہیں آیا. اشیاء زکات کہتے ہیں کہ بھائی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں زکات دینا ہے، اور نصاب زکات کہتے ہیں کتنی ایسی چیزیں ہونا چاہیے، چیزوں کی کتنی مقدار ہونا چاہیے جس پر ہمیں زکات دینا ہے. تو اشیاء زکات ہیں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں. سونا ہے، چاندی ہے، اور نقد کیش ہے، اور جو ہے مال تجارہ، جو مال ڈالا آپ کے پاس رہتا ہے. 4 چیزیں، ٹھیک ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اشیاء زکات ہیں، ان پر زکات دینا پڑتا ہے آپ کو. اور نصاب کیا ہے ان کا؟ نصاب زکات یہ ہے کہ سونا اگر آپ کے پاس ہے تو 7.5 تولے سونا ہو، چاندی ہے تو 5.5 تولے چاندی ہو، کیش ہے آپ کے پاس تو اتنا کیش ہو جتنے میں 5.5 تولے چاندی دے سکتے ہو، اور کوئی مال تجارت ہے تو اس کی اتنی قیمت ہونی چاہیے کہ جتنی قیمت میں آپ 5.5 تولے چاندی دے سکتے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ اس میں 2 چیزیں آ گئی، اشیاء زکات یعنی زکات کی چیزیں، اور نصاب زکات یہ بھی آ گئے.
अब लोग जो है फिर ये सवाल करते हैं कि मौलाना हमारे पास सोना भी 7.5 तोले नहीं है, चांदी भी 12.5 तोले नहीं है, कैश भी हमारे पास इतना नहीं है कि 12.5 तोले चांदी ले सकते हैं, माल डाल भी इतना नहीं है कि 12.5 तोले चांदी उसमें आ सकती है, लिहाजा हम ज़कात देने के पोजीशन में नहीं है। ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो कि निसाब बताया अलग अलग शरीयत ने, लेकिन अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, सोना और चांदी, लेकिन दोनों भी निसाब को नहीं पहुंच रहे, यानी 7.5 तोले सोना भी नहीं है, 12.5 तोले चांदी भी नहीं है, लेकिन दोनों थोड़ा थोड़ा है, तो शरीयत हमें कहती है कि दोनों को मिलाओ और देखो कि कितनी कीमत बनती है। अगर दोनों को मिलाने पर इतनी कीमत बनती है जितनी कीमत में आप 5.5 तोले चांदी खरीद सकते हो, और दोनों को मिलाकर चांदी का निसाब पहुंचता है 5.5 तोले का, तो आप पर ज़कात वाजिब हो चुकी है और आपको ज़कात देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? और 5.5 तोले चांदी का क्या रेट चल रहा है आजकल? अभी मैं देख रहा था सुबह में, कितना चल रहा है? कैसा तोला है चांदी? तकरीबन 3,500 है, 2,600 से कुछ चल रहा है, लगभग 3,000 पकड़ लो, तो 3,000 रुपए तोला चांदी चले आज की रेट में, तो मिनिमम 1.5 लाख होगा, एक मोटा हिसाब बता रहा हूँ। तो मतलब ये हुआ कि 1.5 लाख के अगर आप मालिक हो, आप पर ज़कात वाजिब हो गई। और अगर आप सोना भी थोड़ा है, चांदी भी थोड़ी है, और थोड़ा कैश भी है, जेब में पड़ा है या बैंक में पड़ा हो या कैश हो या फिर चेक हो, कुछ किसी भी शक्ल सूरत में हो, तो तीनों को मिलाओ। ये जो 4 चीजें मैंने बताई, चारों थोड़ी थोड़ी है, और चारों को मिलाने पर आप जो है तकरीबन 1.5 लाख के मालिक बन रहे हो, तो आप पर बुनियादी तौर पर ज़कात वाजिब हो गई, आपको ज़कात देना पड़ेगा। और वो एक शर्त यही है जो आगे आएंगे इंशाल्लाह। ये समझ में आ गई इतनी बात? अशियाए ज़कात और निसाबे ज़कात। ज़कात, निसाबे ज़कात जो है, एक चीज ज़हन में रखो, बाकी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कि अगर आप 52.5 तोले चांदी के बकदर मालिक हो, तो आप पर ज़कात वाजिब हो चुकी है, और आपको जितना भी रहेगा उससे ज्यादा, तो आपको उसकी तमाम कीमत जोड़कर 2.5% के हिसाब से ज़कात आपको देना पड़ेगा। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज होती है ज़कात के देने में शराइत ज़कात, यानी ज़कात देने में क्या क्या शर्तें जरूरी है। तो सबसे पहली जो शर्त है उसमें साल का गुजरना, यानी जो आपके पास माल है, जो मैंने बताया अभी, तो आपके पास 1 साल तक रहे, 1 साल से ऊपर तक आपके पास रह रहा हो, तो फिर उस तमाम माल पर आपको क्या करना पड़ेगा? ज़कात देना पड़ेगा। अब उसमें साल में एक चीज ये ध्यान में रखे कि हर आपके पास जो भी चीज है, हर चीज पर साल गुजरना जरूरी। बोलो, मिसाल के तौर पर इस रमजान की 1 तारीख को, पहले रमजान को आप साहिब निसाब हो गए, आप पर ज़कात वाजिब हो चुकी, ठीक है, 5.5 तोले चांदी के आप मालिक हो गए इस 1 रमजान को। अब आने वाले 1 रमजान को आपको क्या करना पड़ेगा? ज़कात देना पड़ेगा। तो शुरू में भी आप साहिब निसाब रह गए, और जब देना है ज़कात तब भी आप साहिब निसाब हो, ज़हन में रखिए। अब जो दरमियानी साल में जो आपके पास माल आ रहा है और जा भी रहा है, तो आप 6 महीने के बाद जो माल आया इस साल के दरमियान, तो अब वो उस माल पर भी साल का गुजरना जरूरी बोलो नहीं, वरना आप ये सोचेंगे भाई जो बीच में माल आ रहा है उसको माइनस करेंगे, और जो शुरू में हमारे पास जितना था और साल के बाद जितना है उतनी की ज़कात देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि बीच में भी जो माल आते जा रहा है और साल के एंड में जो भी आपके पास माल भी रहेगा, उस तमाम माल पर आपको ज़कात बोलो, समझ रहे बात? दूसरी चीज है माली वाजिबात से जायद जो चीज है उस पर ज़कात है। माली वाजिबात क्या? मिसाल के तौर पर जो है आपके पास कर्ज वगैरह है, आपके ऊपर कर्ज है किसी का, तो कर्ज को माइनस करके फिर जो ज़कात बचती है, अगर वो निसाब को पहुंचती है, और निसाब क्या बताया मैंने, जल्दी बोलो, 5.5 तोले चांदी। अगर आप पर कर्ज है और कर्ज को माइनस करके अगर आप निसाब की अमाउंट बचती है, जो माल बचता है, तो फिर उस पर आपको ज़कात देना पड़ेगा। मिसाल से बात समझिए कि आपके पास है 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो ज़कात वाजिब है भाई यार, लेकिन आप पर कर्ज भी है 1.5 लाख या 50,000 या 1 लाख आप पर कर्ज है, तो आप कर्ज को माइनस करना है, कर्ज को माइनस कर लो 1 लाख, तो कितना बचा? 1 लाख। तो आज की तारीख में 1 लाख पर ज़कात होगी वाजिब नहीं होगी। और अगर कर्ज देकर अगर चांदी की जो निसाब है उतना बच रहा है, कितनी अमाउंट बताया था मैंने? 1.5 लाख। अगर इतनी बच रही है तो फिर आपको ज़कात समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही तो बाद में आकर कुछ
बहुत नहीं। और तीसरी चीज है ज़कात के शराइन में, वो ये है कि जिसको आप ज़कात दे रहे हो बतौर तमलीक दे दो। बतौर तमलीक मतलब मालिक बनाकर दे दो उसको, कि भाई मैंने तुझे जो ज़कात दिया तो इसका मालिक है, कुछ भी कर। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो और बाद में वापस ले रहे हो, ऐसा भी ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। और या फिर वो आपका कर्ज देना था उसकी जिम्मे और आप बोल रहे हैं कि भाई ये ज़कात रख ले, समझ रहे बात? तो इस तरह की आपकी ज़कात, उसमें कुछ अलग अलग हीले हैं। तो इंशाल्लाह अगर किसी को बात समझ आए तो अकेले में पूछिए। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर आपका किसी पर आपका कर्ज है और आप उसी कर्ज को ज़कात में चिपका रहे हो, तो इस तरह आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि मालिक बनाना जरूरी है। और मालिक कब बनाया जाता है? जब आप खुद इधर से देंगे। समझ रहे हैं बात? ये है शराइत ज़कात, इसका भी ख्याल रखें। और आखिर में एक चीज है मसारिफ ज़कात, कि भाई ज़कात अब दे रहा है तो किसको देना है? तो देखो, दो चीजें ज़हन में रखिए। दो तबके के लोग हैं। एक किस्म तो ऐसे लोगों की है जिन पर ये जो चारों चीजें बताया ना, अशियाए ज़कात, सोना चांदी और कैश और माल्टा, तो कुछ लोगों की किस्म ऐसी होती है, इन चारों चीजों को मिलाकर वो निसाब को पहुंचते हैं। यानी चारों चीजों को अगर मिलाई जाए, उनके पास जो चार चीजें हैं अगर हैं या दो तीन भी है, तो अगर उनको मिलाई जाए तो फिर वो निसाब को पहुंचता है, वो यानी 5.5 तोले चांदी तक। ये किस्म के लोग हैं। और दूसरे किस्म के लोग ऐसे रहते हैं, चारों चीजों के मिलाने के बाद भी निसाब को नहीं पहुंच रही है उनकी कीमत और उनकी अमाउंट। तो पहले किस्म के जो लोग हैं उन पर ज़कात देना फर्ज है, समझ रहे बात? और दूसरी किस्म का जो तबका है उनको ज़कात लेना जायज है, समझ रहे बात? मुख्तसर तौर पर। और फिर उसके बाद किसको ज़कात दी जाए? आप ज़कात किसको दी जाए? उसका जवाब ये है कि मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम को ज़कात आप बोलो नहीं दे सकते। और सैयद और सादात घराने से उसका ताल्लुक ना हो, ठीक है? सैयद और सादात घराने को आप ज़कात नहीं दे सकते, बल्कि उनको हदिया दो। और लोग सिर्फ ज़कात में चिपकाने का सोचते रहते हैं। रमजान में मौलाना के पास आते हैं, मौलाना आपको ज़कात चलती क्या बोली? हदिया तो यार मौलाना को, मुझे मत दो, लेकिन और दूसरे मौलाना जो है। तो ज़कात से ये सब लोग, ज़कात तो ऐसा चीज है तो देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा भी हदिया, कुछ तोहफा दिया करो ताकि मोहब्बतें बढ़ेंगी, है नहीं भाई? तो तैयार रखो इंशाल्लाह। तो सैयद घराने से जिसका ताल्लुक होता है उसको ज़कात आप नहीं दे सकते। बल्कि फुक़हा ने लिखा है किताबों में कि सैयद घरानों के जो लोग हैं, अगर गरीब भी होते हैं मसौक़त, तो उनको अपने जो अतियात का जो रकम है, जो हदिया की रकम है, उनसे उनकी मदद, अल्लाह उसका जो सवाब देगा। और तीसरी जो चीज है, जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। आप उससे क्या मुराद है करीबी रिश्तेदारों से? तो हदीस पाक में और मुफस्सिरीन फुक़हा ने लिखी है बात, करीबी रिश्ते से मुराद जिनसे आदमी पैदा होता है, ठीक है, ऊपर तक, बाप, माँ, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, इनको नहीं दे सकते आप। अगर दिएंगे तो ज़कात नहीं होगी आपकी अदा। और आदमी से जो पैदा होते हैं, बेटा, बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इसको ज़कात आप नहीं दे सकते। इसी तरह का रिश्ता है मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। तो पता चलेगा कि भाई बीवी पर ज़कात वाजिब है, तुम मर्द को दे रही हो और दोनों मिलकर खा रहे, मजे कर रहे हैं। और मर्द पर ज़कात वाजिब हो रही है और वो दे रहा अपनी बीवी को, और घर में घुमा रहे। तो याद रखना चाहिए, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात देने से ज़कात वाजिब अदा बोलो नहीं होती। और फिर आखिर में जो है कुछ एक दो मसले हैं जो बड़े अहम है, वो ये है कि रियल एस्टेट पर ज़कात का क्या मामला है। जैसे प्लाट वगैरह है, उसमें एक दो मसले चले कि जो प्लाट और जो घर आपने जो है बेचने के लिए, खरीद और फरोख्त के लिए लिया है, कारोबार के लिए लिया है, तो फिर ऐसे प्लाट पर तो आपको ज़कात देना पड़ेगा। अगर वो इंसान जो शराइत जो पीछे मैंने बताया वो सब ज़हन में रखो। तो जो प्लाट, जो मकान आपने बेचने के लिए खरीद और कारोबार के लिए ले रखे हैं, कमाने के लिए, तो उस पर तो ज़कात आपको देना पड़ेगा, उसकी कीमत निकालकर ढाई टके के एतबार से। और फिर अगर जो प्लाट और जो मकान आपने बेचने के लिए नहीं लिया है, बल्कि आपकी नीयत ये थी खरीदते वक्त कि भाई मैं ये प्लाट ले रहा हूँ लेकिन मैं अपने रहने के लिए ले रहा हूँ, तो फिर इस पर ज़कात वाजिब बोलो नहीं होगी। और दूसरा एक मसला ये है कि अगर आपने जो है बेचने की नीयत से तो नहीं खरीदा, खरीदो, लेकिन बाद में नीयत हुई कि मैं बेचूंगा, फिर हम क्या करेंगे? तो हम ये है कि जब बेचोगे
तो फिर उस पर ज़कात देना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात? और एक मसला ऐसा है कि आपने जमीन खरीदी या घर खरीदा बड़ा, जिससे आज के मामला चल रहे हैं, ताकि आप उसको किराए पर देंगे, तो अब इसका क्या मसला है? इसलिए इसका मसला ये है कि ऐसे प्लाट और ऐसे घरों पर जो किराए पर आप देना चाह रहे हो, तो इस प्लाट पर, इस घर पर ज़कात नहीं है, बल्कि इसके जरिए से जो इनकम, जो आमदनी होगी, और जब वो निसाब को पहुंचेगी तो फिर उस पर आपको ज़कात बोलो भाई देना पड़ेगा। इसी तरह का मसला है, वो बड़ा है। अभी आपने किसी को कर्ज दिया, ठीक है, 2-3 लाख रुपए दे दिया, 5 साल की मुद्दत थी, फॉर एग्जाम्पल 5 साल में उसको लौटाना है। अब आपका माल है वो, 5 लाख रुपए कर्ज आपने दिया है, 2 लाख 5 साल के बाद आपको लौटाना है। तो अब ये जो अमाउंट आपकी उसके पास पहुंची है बदौलत कर्ज, क्या इस पर भी आपकी ज़कात देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? उसमें एक मसला है कि अगर आपने जिसको कर्ज दिया है, तो वो कर्ज आपको वापस मिलने की उम्मीद और चाह से वापस मिलने का वो कर्ज, तो फिर आपको ज़कात देना पड़ेगा। और वो सामने वाला ऐसा है, डाकू किस्म का आदमी, जो बुढ़ाने का उसका इरादा है, और आपको यकीन है, 100% आपको यकीन है कि आप मेरे को ये मेरे पैसे वापस नहीं मिलने वाले, तो फिर उसकी ज़कात आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर मिलने का यकीन है कि मेरे को मेरा कर्जा वापस मिलेगा, तो फिर आपको जितनी कीमत है अभी 5 साल के बाद देने वाला है, तो हर साल आपको उसकी ज़कात देना पड़ेगा। ये भी एक जायज शक्ल सूरत है। और अगर आप हर साल नहीं दे सकोगे, तो जब वो 5 साल के बाद आपको पूरी रकम वापस मिलेगी, पूरी रकम वापस मिलने के बाद भी आप 1 साल और बैग हो पूरे पिछले सालों की ज़कात बोलो भाई दे सकते हो, निकालना पड़ेगा। समझदार है इसमें मोटी मोटी मसाइल, और बहुत सारे मसाइल हैं जो बहुत ज्यादा समझना चाहते हैं, वो अकेले में आकर, ठीक है, वो पूछें और ज़कात के निकालने पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ज़कात के अदा करने पर क्या होगा भाई? माल बढ़ेगा। और देखो एक बात मैंने भूल गया, ज़कात का जो वर्ड है, उसके वर्ड से हमें पता चलता है कि माल में इजाफा होता है। ज़कात के माना ही बढ़ने के, और एक माना लिखा है उलमा ने सफाई के, ठीक है भाई। तो ज़कात, अच्छा दूसरी एक चीज याद आई, अभी बहुत बातें याद आ रही है, इस सब लोग परेशान हो रहे हैं। मौलाना क्यों परेशान हो रहे हैं? बोलेंगे मौलाना गोल्ड जो है पिछले साल रमजान में 70,000 था, इस साल 1,70,000 हो चुका है, तो अब पिछले साल जिसने 20 दिया था उसको 40 से 50,000 देना पड़ा है, डबल फीस ज्यादा। तो लोग परेशान हो रहे हैं, मौलाना कैसा देंगे हम? तो भाई देना तो है, तो शरीयत ने आसान रास्ता भी बताया है, हिसाब किताब करो पूरा। अगर 50,000 आप पर ज़कात वाजिब हो रही है, तो शरीयत ये नहीं कहती कि 50,000 एक तरफ फौरन उठाकर दे दे। अगर आपको वजन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो हिसाब किताब करो, 50,000 आपकी ज़कात नहीं कर रही है, तो 15-20,000 रुपए दे दो। 1-2 महीने के बाद जब आपकी पेमेंट आएगी, तो फिर और उसमें से 10 दे दो, और अगले महीने में 10 दे दो। इस तरह भी गुंजाइश है मज़हब इस्लाम ने, इसलिए परेशान मत हो जाओ। ज़कात दे दो, लेकिन ज़कात जब दोगे तो इंशाअल्लाह कई लोगों के ऐसे तजुर्बे और मुशाहिदात हैं, इस कहते हैं कि मौलाना ज़कात हमने दी, अगले साल में माल बढ़ा दिया, और ज़कात बड़ी हो रही है भाई, जब माल बढ़ रहा है तभी तो ज़कात बढ़ रही है, ठीक है भाई। तो ज़कात दीजिए, यकीनन दीजिए, ठीक है। अल्लाह में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस तरह सदक़ातुल फित्र भी है, वो बताएंगे भी अगले जुमा में देंगे। तो सदक़ातुल फित्र के भी मसले इंशाअल्लाह अगले जुमा में उसको बयान किया जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।